Hello, good afternoon, children. How are you? So, today I am here with chapter number 1 from Supplementary Reader Snapshots for class 11th. Today I am going to discuss about the first chapter, that is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarrion. In this video, I am going to explain we'll discuss about author William Sarrion, then overview of the chapter. After that, I'll be discussing about the characters, the main characters played by two cousins, Aram and Murad, then their uncle Khusro, then the White Horse owner John Byro, then there is very interesting character White Horse whose name is Wazire, and few more characters. After that, I'll be discussing the theme of the story, and in the end, the beautiful end, how the story has ended with a beautiful message. So let us see what is there. Let us move to next clip. So let us begin with the story, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarrion. But before I start the story, explaining the story, let me tell you brief introduction about the author. William Sarrion was born on 31st August 1908 and he died on 18th May 1981. And to his honors, he has won 2 prizes. One is Pulitzer Prize for drama in 1940, and he won Academy Award for the best story for the film The Human Comedy in 1943. And now little about the characters. There are 2 poor Armenian boys in the story who belong to Armenian tribe, and they are member of the Geroglanian family. The member of these families are known. The hallmarks of this family are trust and honesty. Okay, so despite these 2 main characters, Aram and Murad, there are 2 more important characters. One is Uncle Khusro, who is a crazy uncle. He is uncle of Aram and Murad. And secondly, the 4th one is John Byro, who is the owner of this white horse. And yes, not to forget the character White Horse, that beautiful white horse, his name is Wazire. So let us see the chapter. Okay, children, so let us begin with the story. So this is the time. The narrator here is 9 years old and his name is Aram. Okay, and he remembers those words. He's saying good old days when I was 9. So I here is Aram and he is 9 years old. Okay, and he is talking about those good old days when he was small, and he is talking about the world. दुनिया क्या थी? It was full of इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस. बहुत ही खूबसूरत जगह थी दुनिया. लाइफ में जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो जो डिलाइटफुल होती हैं, मिस्टीरियस होती हैं, वो सारी चीज़ें दुनिया में भरी हुई थी. और दूसरा कैरेक्टर जो है हमारा मुराद, वो उसका कज़न यानी एरम का कज़न है ये. ठीक है. और मुराद जो था, जिसको हमारी फैमिली में क्रेज़ी माना जाता था, और वो सुबह ही 4 बजे मेरे घर आ गया और उसने मेरे कमरे के विंडो पर टैप किया, खटखटाया और बोला, एरम. मैं अपने बिस्तर से कूदा बाहर और खिड़की के बाहर देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ जो उसके साथ था. इट वॉज़ नॉट मॉर्निंग येट. अभी सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन चूँकि गर्मी की सुबह थी तो थोड़ी ही देर में सनराइज़ के थोड़ी ही देर बाद पूरे जगह उजाला ही उजाला भर जाता है. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ ड्रीम कर रहा हूँ, सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं. तो मैंने ये देखा. अब क्या बाहर का नज़ारा क्या था? इसने ये देखा कि बाहर मुराद जो है, ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. वो एक खूबसूरत से सफ़ेद घोड़े पर बैठा है. और मैंने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें रब की, जैसे उसे विश्वास ना हो रहा हो कि वाकई में मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा है, खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर. और उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ ये घोड़ा है, तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो. किसने कहा ये कहा मुराद ने. ठीक है. और जल्दी आओ नीचे अगर तुम राइडिंग करना चाहते हो तो. उसके बाद से है बच्चों नेक्स्ट पेज.
जिसमें ये जानता था बहुत अच्छे से अपने कज़न मुराद को कि किस तरीके से मुराद जो है वो इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, बट ये चीज़ मेरे को विश्वास नहीं हो रही थी। और ऐसा एक लड़का कह रहा था, ऐसा मेरा एक भाई कह रहा था जो इस दुनिया में गलती से आया था। मतलब इस किस्म के लोग बहुत ही क्रेज़ी और फ्रीकी किस्म का था वो। और पहले तो बात ये थी यहाँ पर कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं घोड़े पर को राइड कर पाऊँगा। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं और मैं घोड़े पर सवारी करूं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट था कि मेरे आंखों के सामने घोड़ा था और मुझे राइड करने का मौका मिल रहा था। दूसरी बात ये है कि हम लोग गरीब थे, यानी जिस परिवार को ये बिलोंग करते थे वो बेहद गरीब था। और ये जो पार्ट था यानी गरीबी वाला, ये उसे विश्वास नहीं करने दे रहा था जो मैं देख रहा था। यानी घोड़ा उसके पास कैसे आएगा, ये इतने गरीब थे, इनके पास पैसे नहीं थे, पूरा ट्राइब इनका पॉवर्टी स्ट्रिकन था, बेहद गरीब। और गैरोग्लिनियन फैमिली का हर ब्रांच वो दुनिया की सबसे कॉमिकल और अमेजिंग किस्म की पॉवर्टी का शिकार था। कोई नहीं जानता था कि इतना भी पैसा कहाँ से आता है कि इनको भोजन मिल जाता है, इनके पेट भर जाते हैं। यहाँ तक कि इनके बड़े बूढ़े, इनके घर के बूढ़े लोग भी नहीं जानते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इनका पूरा परिवार ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था। और ये फेमस इसलिए भी थे, और कब से फेमस थे, ये 11th सेंचुरी से फेमस थे, आज से नहीं। 11th सेंचुरी से इनकी ऑनेस्टी को लोग जानते थे। और कभी एक ज़माना था, लोग कहते हैं कि ये वेल्दिएस्ट फैमिली हुआ करती थी और इन्हें बहुत लेकिन इनके परिवार में पिछले कई पीढ़ियों से इन्होंने ये चीज़ वेल्थ तो देखी ही नहीं थी। ठीक है। सो लेकिन एक अच्छी बात थी कि ये परिवार जो था, इट वाज क्वाइट प्राउड। फिर ऑनेस्टी इनकी एक हॉलमार्क ट्रेट था इनका। फिर ये राइट और रॉन्ग्स में बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेंगे आप। उसके बाद से इनमें से इनको ये मालूम था कि इनके परिवार के लोग किसी दूसरे का तो फ़ायदा उठा ही नहीं सकते, चोरी तो बहुत दूर की बात है। तो ये चोरी भी नहीं कर सकता मुराद। तो कॉन्सिक्वेंटली इसे ये लगा, जैसे ही इसने घोड़े को देखा, इतना खूबसूरत मैग्निफिसेंट घोड़ा, और ये उसको स्मेल कर सकता था, उसकी खुशबू आ रही थी, इट वॉज सो लवली, उसकी ब्रीदिंग इसको सुनाई दे रही थी, एक्साइटिंग लग रहा था इसे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा भाई मुराद जो है मेरे आंखों के सामने खड़ा है इस घोड़े को लेकर के। तो और सबसे बड़ी बात, मुराद के बारे में आरम को ये पता था कि ये घोड़ा खरीद तो सकता नहीं है, और अगर इसने ख़रीदा नहीं है तो ज़रूर चुराया होगा। और मैं ये विश्वास करने के लिए कतई तैयार नहीं था कि उसने ये घोड़ा चुराया है, क्योंकि चोरी करना इनके ट्राइब में, इनकी फैमिली की क्वालिटी नहीं थी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। We were on this paragraph that no member of the Garoglanian family could be a thief. ये बात तो बहुत अच्छे से मालूम थी आरम को कि उनके परिवार में कोई भी चोर नहीं हो सकता। तो उसने बड़ी तेज़ घूरा अपने कज़न को, फिर घोड़े को, फिर बहुत ही, और दोनों में एक स्टिलनेस, एक पायसनेस, एक पवित्रता, एक ह्यूमर नज़र आया उसको। और ये चीज़ एक तरफ तो थोड़ा डिलाइटेड फील कर रहा था, खुश था, लेकिन दूसरी तरफ डरा भी हुआ था। और मुराद ने कहा, मुराद से इसने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से चुराया ये घोड़ा? तो उसने कहा, अगर तुम वाकई राइड करना चाहते हो तो तुरंत कूद के आओ अपने खिड़की से बाहर। इसका मतलब ये सच है। आरम ने सोचा इसने घोड़ा चुराया है और अब इस पर कोई शक नहीं था, और ये मुझे इसलिए इनवाइट करने आया है कि मैं राइड कर सकूं। तो मैं चाहे राइड करूं या ना करूं, ये चीज़ सच है कि इसने घोड़ा चुरा लिया है। ठीक है, तो अब वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच इज मनी। तो मेरे हिसाब से, अब देखो, आरम को घोड़ा सीखना था, घोड़ा चलाना, तो अब वो इस स्टीलिंग को, इस चोरी को भी जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि हम अगर राइडिंग करने के लिए चुरा रहे हैं घोड़ा तो कोई बुरी बात नहीं है,
और अगर पैसे के लिए चुराते तो गलत बात होती। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टीलिंग है ही नहीं। और ख़ास करके जब आप बहुत ही क्रेज़ी हो हॉर्सेस को लेकर के, और ये चोरी नहीं है, तो अपने दिल को वो समझा लेता है कि दिस इज़ नॉट स्टीलिंग। ओके, तो अब अगर हमने ये चुराया होता, बेचा होता, पैसे कमाए होते, तो वो चोरी कहलाती। तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा मुराद, उसको अपने कज़न पर पूरा विश्वास था। सो इसने कहा ठीक है, मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। उसने कहा ऑल राइट, जल्दी करो, फटाफट आओ। इसने कपड़े बदले और फट से कूद करके यार्ड की तरफ भागा, विंडो से कूदता हुआ, और मुराद के पीछे जाके घोड़े पर बैठ गया। अब उस साल ये वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। इनके घर के पीछे कंट्री का मतलब यहाँ कोई बड़ा देश नहीं है, कंट्री का यहाँ मतलब है विलेज एरिया, जो रूरल एरिया होता है उसको कहा जाता है कंट्री। और इसके ठीक पीछे एक ग्रामीण इलाका था जहाँ पर वाइन यार्ड्स थे, अंगूर की बेलें थी, अंगूर की खेती होती थी वहाँ पर, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे, और रास्ते थे। ठीक है, तो 3 मिनट के अंदर अंदर ये ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। और उसके बाद से इन्होंने वहाँ पहुँचे तो अब घोड़ा आराम से ट्रॉट करता हुआ दौड़ने लगा। हवा बड़ी अच्छी थी, बहुत ही इट वाज लवली टू ब्रीथ, एंड द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। और ये सोचकर भी इतना अच्छा लग रहा था, वो महसूस कर रहा था इस बात को कि कितना अच्छा लग रहा है। और मुराद को, जिसको कि हमारे परिवार में सबसे क्रेज़ीएस्ट मेंबर मानते थे, वो गाना गाने लगा। और जो गाना क्या गा रहा था, वो चीख रहा था। तो हमारी फैमिली में एक क्रेज़ी स्ट्रीक है, और मेरे मुराद इस भाई को, मेरे इस कज़न को, यानी आरम के इस कज़न को एक नेचुरल डिसेंडेंट माना गया है कि ये इस ट्राइब में अब की बार इस जनरेशन में इस बंदे को वो पागलपन मिला है। और इससे पहले वाली जनरेशन में हमारे अंकल खुसरो को ये पागलपन मिला था। अब थोड़ा सा अंकल खुसरो के बारे में कर ले बच्चों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंकल खुसरो का पेन पोर्ट्रेट ज़रूर आता है, तो ये चारों लाइनें आप अच्छे से एकदम हाईलाइट कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही वॉज एन एनॉर्मस मैन, बहुत ही ह्यूज साइज्ड आदमी, और काले बाल, पावरफुल हेड यानी स्ट्रॉन्ग हेडेड, और लार्जेस्ट मुस्टैच। सैन जोकान वैली के रहने वाले थे, वहाँ पर इनकी सबसे लंबी बड़ी मूछें थीं। और इतना ही नहीं, ये बंदा बड़ा ही फ्यूरियस और शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ही इरिटेट हो जाना जल्दी, बहुत ही इम्पेशेंट होना, और कोई भी बात कर रहा हो उसको ज़ोर से चिल्लाते हुए रोक देते थे। और इनका एक तकिया कलाम था। तकिया कलाम मतलब होता है सेंटेंस डिस्कोर्स मार्कर, यानी कि हम जब बार बार अपने वक्तव्यों में अगर एक ही शब्द का बार बार उच्चारण करें तो उसको कहा जाता है तकिया कलाम, और उसको कहा जाता है डिस्कोर्स मार्कर। तो ये यहाँ पर अंकल खुसरो का डिस्कोर्स मार्कर क्या था? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये उनका फेवरेट डायलॉग था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और दैट वाज ऑल, बस नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसी तरीके से कि कोई उनके बारे में क्या बात कर रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका बेटा एरिक जो है वो चिल्लाता हुआ आया, 8 ब्लॉक्स भागता हुआ बार्बर शॉप पर, जहाँ उसके पिताजी यानी अंकल खुसरो अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे। उसने कहा कि पापा घर में आग लग गई है। तो अंकल चेयर पे बैठे रहे बहुत ही, और वहीं से चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, तो कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। तो बार्बर ने कहा, अरे भैया तुम्हारा घर जल रहा है, तुम्हारा बेटा कह रहा है। तो खुसरो फिर चिल्लाए, उसने कहा अरे कोई बात नहीं, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से कहा जाता था कि अंकल खुसरो की क्वालिटीज़ इस बार मुराद में आई थी। मुराद उनका नेचुरल डिसेंडेंट था। हालांकि मुराद के फादर का नाम जोराब था, हाँ, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे। लेकिन इनके ट्राइब में ऐसा होता है कि कभी कभी कोई किसी और के ऊपर चला जाता है, उसके जीन्स और उसकी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है ये। तो अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, फिजिकली हो सकता है वो सिमिलर हो, बट कभी कभी स्पिरिट मतलब अंदर से जो क्वालिटीज़ होती है, हमारे ट्रेड्स होते हैं इनहेरेंट, वो अलग हो सकते हैं। तो इस मामले में इस बार मुराद किस पर गया था? अंकल खुसरो पर गया था। ठीक है, अपने पिता जोराब पर नहीं गया था। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ट्रेड्स की हमारे ट्राइब में, वो काफ़ी वैगरेंट और कैप्रीशियस है।
वैग्रेंट और कैप्रीशियस का मतलब होता है, तो कैप्रीशियस और वेगरेंट का मतलब बच्चों होता है, बताती हूँ। वेगरेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेगाबॉन्ड, वॉन्डरर, जो इधर उधर घूमता रहे, ठीक है। और कैप्रीशियस का मतलब होता है मनमौजी, फिकल, अनस्टेबल, ठीक है। तो ये इनकी क्वालिटीज़ थी इनके परिवार की। अब इन्होंने ये मुराद और एरम दोनों ने हॉर्स राइडिंग करते हुए, गाते हुए चलते गए आगे, और इन्होंने वो पूरा इलाका घूमा। और इनके हिसाब से जो है इनके जो नेबर्स थे उन्हें लगा, और जितना मतलब वो घोड़े को दौड़ने दे सकते थे उन्होंने दौड़ने दिया। उसके बाद से मुराद ने कहा कि ऐसा है, अब उतरो, अब मैं अकेले घोड़ा दौड़ाऊंगा। तो उसने कहा कि क्या मुझे भी अकेले करने दोगे, आरन ने पूछा। तो उसने कहा कि ठीक है, वो घोड़े पर है, ठीक है, पहले अभी नीचे उतरो। तो एरम ने कहा घोड़ा मुझे अपने ऊपर सवारी करने देगा। उसने कहा देखते हैं, और ध्यान रखो ये मत भूलना कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स। तो जैसे खुसरोव का एक डिस्कोर्स मार्कर था, हमारे मुराद जी का भी एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, आई हैव अ वे विद हॉर्स, आई हैव अ वे विद बर्ड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। इस तरीके से वो हर जानवर के साथ उनका बड़ा अच्छा नाता था, बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लेते थे। तो खैर, वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। तो जैसा आपका बहुत अच्छा रिलेशन है ना हॉर्स के साथ, वैसे मेरा भी है। तो उसने कहा ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, मानते हैं, मान लेते हैं ये बात, फिलहाल नीचे उतरो। उसने कहा ठीक है, बट ध्यान रखना तुमने वादा किया है कि तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे। ये उतर गया एरम, और कज़न मुराद ने ज़ोर से घोड़े को एक अपने जैसे मारना पड़ता है उसको, और शाउट चिल्लाया वज़ीरे रन। और घोड़ा जो था अपने हाइंड लेग्स पर अपने दोनों पाँव आगे करके स्नॉट करके हिनहिनाया और ज़ोर से एकदम स्पीड में भाग पड़ा। आप देख सकते हैं पिक्चर में ऐसे। एंड देन आफ्टर दैट इतनी खूबसूरत चीज़ आज तक एरम ने देखी नहीं थी, इस तरीके से घोड़े को दौड़ते हुए। ही वॉज सो डिलाइटेड, ही वॉज सो हैप्पी, इलेटेड। और कज़न मुराद ने मतलब थोड़ी देर के बाद वो एक खेत में गए जहाँ सूखी घास थी, फिर इरिगेशन डिच तक वो ले गया। उसके बाद से उस डिच को क्रॉस किया, और 5 मिनट के बाद जब वो लौटे तो वो पूरे तरीके से गीले थे। और इधर सूरज भी उग गया था, सनराइज़ हो चुका था। अब मेरी टर्न थी हॉर्स राइड करने की। कज़न मुराद नीचे उतरे तो उन्होंने कहा ठीक है जल्दी से राइड करो। ये तुरंत कूद करके चढ़ गया, और उसके बाद से डर भी लग रहा था इसे, और घोड़ा चल ही नहीं रहा था। इसने उसके मसल्स में किक किया। मुराद ने कहा तुम वेट क्या कर रहे हो, वी हैव गॉट टू टेक बैक, जल्दी करो, इस दुनिया में सब लोग जग जाएंगे तब चलोगे। और इसने एरम ने आओ देखा ना ताओ, उसने ज़ोर से मसल्स में किक किया, हॉर्स के मसल्स में, और वापस से ये ज़ोर से हिनहिनाता हुआ भागा। और जैसे ही भागा उसके बाद एरम को याद नहीं क्या हुआ, और इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, बजाय जैसे मुराद के वक्त वो खेत की तरफ ले गया था, इस बार खेत की तरफ नहीं ले गया। वो जाने कहाँ सड़क पे दौड़ने लगा वाइनयार्ड के पास, और ये डिक्रान हेलेबियन का वाइनयार्ड था, ठीक है। वहाँ ये भागने लगा ज़ोर ज़ोर से, और सारे अंगूर के बेलों पर ये कूदने लगा। और उसके बाद से करीब 7 बार वाइन्स पर कूदने के बाद, 7 वाइन्स पर कूदने के बाद, और उसके बाद इसने एरम को गिरा दिया और वो भागता रहा। इधर कज़न मुराद दौड़ते हुए आए, और ये अपने बारे में वो ये चिंतित नहीं थे। उसने कहा मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ, मुझे अभी टेंशन है कि घोड़ा कहाँ चला गया। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, हम घोड़े को ढूंढते हैं, और सुनो काइंड रहना, मैं आसपास ही हूँ। और इन्होंने जो है ये रास्ते की तरफ चल दिए, ये दूसरी रास्ते की तरफ चल दिए। तो मुराद जो है वो खेतों की तरफ गया था, इरिगेशन डिच की तरफ। तो करीब आधे घंटे बाद घोड़ा मिला, और वो वापस लेकर उसको आए, और ही सेड चलो अब जल्दी से घोड़े पर बैठो, पूरी दुनिया जग जाएगी तब हम जाएंगे। तो उसने कहा हम क्या करेंगे। उसने कहा कुछ नहीं, या तो हम इसको वापस ले चलते हैं, कल सुबह ला करके फिर एक बार राइडिंग करेंगे। तो वो चिंतित नहीं लग रहा था, बहुत ही निश्चिंत लग रहा था। उसे मालूम था कि इसने कहीं उसको ज़रूर छुपाने का की जगह सोच रखी है, इसलिए वो घबराया हुआ नहीं है। और खैर उसने कहा आप हम इसको कहाँ छुपाएंगे। तो उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुमने घोड़ा कब से चुराया हुआ है।
तो उसने तभी उसको अचानक ख्याल आया कि ये हो सकता है सुबह सुबह ये राइडिंग के लिए जाता होगा और आज सुबह इसलिए आया होगा मेरे पास क्योंकि ये जानता था मुझे घोड़ों से कितना प्यार है। और उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? उसने कहा नहीं, मतलब आप कितने दिनों से राइडिंग कर रहे हो ये तो बता दो। और बाकी का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज़ काफ़ी लंबा है चैप्टर। तो just wait for part 2. Okay, God bless you.